ওকে, আচ্ছা। সো আমরা যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে রিপ ভার্সন 1 নিয়ে যেটা আমরা করছিলাম আগের দিন। আমরা রিপ ভার্সন 1, ভার্সন 2 এগুলো আমরা করেছি। তো আমরা এটা জিস্ট, দিস ইজ দ্য জিস্ট, যে ফার্স্ট অফ অল ইফ ইউ আর আস্কড that what are the characteristics of the রিপ ভার্সন 1, then it should be the answer. and if you are asked রিপ ভার্সন 2, then অলরেডি তোমাদের এই এটা আমার দেওয়া আছে, নোটটা আমার দেওয়া আছে যে রিপ ভার্সন 2 তে কি কি বলবে। আর যদি বলে অ্যাজ এ হোল, ইফ ইউ আর আস্কড হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ফিচার্স অফ রিপ, অনলি রিপ, যদি বলে শুধু রিপ, তাহলে আনসারটা হবে রিপ ভার্সন 1, যেটা করে আমার দেওয়া আছে নোটেতে। রিপ ভার্সন 1 এন্ড রিপ ভার্সন 2 বোথ ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড। তোমাকে দুটোরই ফিচার্স ইউ হ্যাভ টু মেনশন। ওকে, এই পার্টটার পরে আমি যে পার্টটায় আসছি এটা তো তোমরা জানো, অলরেডি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। এটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেটা আমি বলে দিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে রিপ ভার্সন 1 পারমিটস অনলি এ সিঙ্গেল সাবনেট মাস্ক। মানে সিঙ্গেল সাবনেট মাস্ক মানে হচ্ছে, দেখো তুমি খেয়াল করে, যেখানে আমার ইউজ হচ্ছে /24, মানে যতগুলো नेटवर्क, जितना भी नेटवर्क तुम्हारे पास होगा, सब नेटवर्क का जो सबनेट मास्क होगा वो कॉमन होगा, मतलब सेम होगा। अगर ऐसा होगा कि /24 कोई जगह /20, तो री वर्जन 1 वोंट वर्क। री वर्जन 1 है हमारे सीआईडीआर वैल्यू, इट इज कॉल्ड सीआईडीआर वैल्यू /24 और स्लैश, যেটা আমরা স্ল্যাশ দিয়ে লিখি, তো দ্যাট শুড বি সেম ইন অল সাবনেট। মানে প্রতিটা সাবনেটে আমার যেন সেম আমার সাবনেট আমি ইউজ করি। যদি কোনো কারণে, এটা ভার্সন 1 এর কথা বলছি, একটা হচ্ছে /24, একটা /22, একটা /20, যদি এরকম সাবনেট থাকে, তাহলে রিপ ভার্সন 1 কিন্তু কাজ করবে না। তার মানে আমার সেম, তাই জন্য বলেছে অনলি এ সিঙ্গেল সাবনেট মাস্ক। খেয়াল করে দেখো, এই যে পিকচারটা দেওয়া আছে প্রত্যেকটাই কিন্তু সিঙ্গেল সাবনেট মাস্ক, /24 কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে। আমি কি বলছি বোঝা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ আমি কি স্যার। বলছি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো এইটা হচ্ছে একটা ফিচার যেখানে সিঙ্গেল সাবনেট মাস্ক কিন্তু ও সাপোর্ট করে, মাল্টি সাবনেট মাস্ক কিন্তু করে না। এটা দেখাচ্ছে কোন ডিরেকশনে কোন নেটওয়ার্ক চলছে। এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন, আমরা জানি এটা কিভাবে নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনটা করতে হচ্ছে। কমান্ডটা এইভাবে হচ্ছে, চলে কোন ইন্টারফেসে ঢুকছে, কনফিগারেশন মোডে ঢুকছে, ঢুকে গিয়ে আমরা দিচ্ছি। এটা অলরেডি তোমরা এগুলো গো থ্রু করে গেছো, আশা করি বাড়িতে প্র্যাকটিসও করেছো। ভেরিফিকেশন, ভেরিফিকেশনটা এখান থেকে তোমাকে করতে হবে। কিভাবে করতে হবে না, শো আইপি প্রোটোকল। যে কোনো রাউটারে ঢুকবে, মানে অর্থাৎ তুমি যদি আগেরটায় যাও, দেখো গ্র্যাড হচ্ছে এই রাউটার, গ্র্যাড ইজ দিস রাউটার, দ্য মিডল ওয়ান, বোজ ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান, অ্যান্ড দ্য বিএইচএম ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। তাহলে তুমি যদি সাপোজ গ্র্যাডে যাও, গ্যাড শো আইপি প্রোটোকল, এটা হচ্ছে রিপ ভেরিফিকেশন কমান্ড। রিপ কমান্ডটা তুমি ভেরিফাই করছো, দেখো তার নিচে পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছে, জাস্ট बिलो द प्रोटोकॉल, आई मीन सॉरी कमांड, शो आईपी प्रोटोकॉल के नीचे जो है कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राउटिंग प्रोटोकॉल इज रीप। नेक्स्ट लाइन में क्या है, सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड्स, नेक्स्ट ड्यू इन 5 सेकेंड, माने आर 5 30 सेकेंड, उसके बाद 5 मिनट, 5 मिनट अभी है, 5 मिनट बाद इसको नया अपडेट मिलेगा। से नया हो सकता है, सेम अपडेट हो सकता है नया अपडेट। invalid after 180 seconds, hold down 180 seconds, flushed after 240 seconds, everything is given here, everything is given here। next কি বলছে, outgoing update filter, outgoing update filter list for all interfaces is
ইজ ওটা কমপ্লিট করেনি, এই পার্টটা দেয়নি আর কি, মানে এটা একটু মনে হচ্ছে স্ক্রিনের বাইরে একটু চলে গেছে। যাই হোক, এখানে তো তোমার আউটগোয়িং আপডেট ফিল্টার, আমাদের এখানে কোনো ফিল্টার আমরা ইউজ করিনি, তাই জন্য এখানে কোনো ফিল্টার ইজ এর পর না, সরি ইজ এর পরটা এই কারণে দেখাচ্ছে না কারণ আমরা কোনো এখানে ফিল্টারিং প্রসেস আমরা ইউজ করিনি এখনো পর্যন্ত, তাই জন্য আমরা এখানে দেখাচ্ছি ইনকামিং আপডেট বা আউটগোয়িং আপডেটে কোনো ফিল্টারেশন নেই। সেকেন্ড যেটা বলছে কি ডিফল্ট ভার্সন কন্ট্রোল সেন্ড ভার্সন 1 রিসিভ এনি ভার্সন, তার মানে এর ডিফল্ট ভার্সন কত, আমরা রিপ কত ইউজ করছি ভার্সন 1, সো ইট ইজ দ্য ভার্সন 1। আর সেন্ড কি বলছে, বলছে রিসিভ, তোমার সেন্ড করেছো ভার্সন 1 এর মেসেজ আর রিসিভ এনি ভার্সন, तार माने डिफॉल्ट वर्जन कंट्रोल टा बोलते जेहेतु वो रीव वर्जन 1, क्योंकि ये रीव वर्जन 1 है तो इसीलिए वो जो अपडेट जो भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे ना तो वो रीव वर्जन 1 का अपडेट भेजेंगे, बट इट कैन रिसीव एनी अपडेट फ्रॉम एनी वर्जन। सपोज इसके साथ जुड़ा हुआ है एक रीव वर्जन 2, अगर रीव वर्जन 2 से कोई अपडेट मिलेगा तो ये रिसीव कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसीलिए ये मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, এই জন্য এটা এখানে লিখে রেখে দিয়েছে। নেক্সট হচ্ছে ভেরিফিকেশনে, দেখো এখানে প্রত্যেকটা দিয়ে দিচ্ছে ভেরিফাই নেটওয়ার্কস বিং অ্যাডভার্টাইজ, কোন নেটওয়ার্কটা এসছে, আর এখানে বলেছে কি ভেরিফাই রিপ ইন্টারফেস, এখানে কোন ইন্টারফেসে রিপ চলছে সেটা তুমি এখানে ভেরিফাই করতে পারবে, মানে তোমাকে ভেরিফাই করতে হবে যে আমি যে কনফিগারেशनটা করেছি, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है वो सही है या नहीं, ये री शो आईपी प्रोटोकॉल से तुमको पता चलेगा कि ये नेटवर्क जो ये जो वेरीफाई, देखो ये रेड कलर का लिखा हुआ है वेरीफाई नेटवर्क्स बीइंग एडवर्टाइज्ड, दिस वन एंड यहाँ पर होगा वेरीफाई रीफ इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस में कौन सा कनेक्टेड है, देखो यहाँ पर फर्स्ट इथरनेट 0 और सीरियल 0, माने इसके साथ जुड़ा हुआ जो जो मिलेगा उसको, ये है राउटिंग अपडेट्स, जस्ट सी, देखो यहाँ पर से एक सीरियल है एक नेटवर्क है, यहाँ पर भी एक सीरियल है, दो सीरियल इंटरफेसेस है, तो इसके साथ इसके पास से किसका मिल रहा है 102.0, 10 कहाँ चला गया 1010 168, ओ अच्छा ये 10 नेटवर्क का है और ये 20 नेटवर्क का है, तो बोथ साइड से इसका मिल रहा है क्योंकि ये बीच में है इसीलिए। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस गेटवे, इसका गेटवे कौन सा है 192.168.2.2 और 120 डिस्टेंस 120 किस लिए है, डिस्टेंस मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो एडी वैल्यू है उसका, और अपडेट कौन सा टाइम में आया 11 सेकंड्स में इसका अपडेट आया। डिफॉल्ट इज 120 क्योंकि हमको हम लोगों के पास जानकारी है, আমরা জানি যে রিপের এডি ভ্যালু হচ্ছে 120, so that is why gateway is this and the distance is 120. This is the summary what you have configured in under RIP. রিপের ভেতরে তুমি যে কনফিগারেশনটা মানে রাউটিং ইনফরমেশন রিলেটেড, আমি বলছি রাউটিং রিলেটেড, আমি আদার্সটা বলছি না, সেই রিলেটেড যা ইনফরমেশন তুমি কনফিগার করেছো ইট শোজ দ্যাট। So if you want to verify the RIP configuration, then you must use the command show IP protocols. देने से ये कमेंट देने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास चला आएगा कि भाई RIP प्रोटोकॉल में अंदर कौन सा क्या क्या बनाया तुमने, किसके साथ किसका जुड़ा हुआ है, उसका अपडेट क्या है, गेटवे क्या है, एडी वैल्यू क्या है, कौन सा नेटवर्क का राउटिंग इंफॉर्मेशन उसके पास, कौन सा नेटवर्क का कौन सा नेटवर्क के थ्रू से उसको उसके पास आना चाहिए, सब कुछ इसके यहाँ पर दे देंगे, उसके साथ ये टाइमर्स भी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay. This is important, very important. The debug IP RIP. Debug IP RIP. ये जो हम बोल रहे हैं ना ये লিখ লো, এটা লিখে রাখো কিন্তু এই কমেন্ট গুলো, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট, মানে এগুলো তোমার এমসিকিউ তেও আসতে পারে, মেবি ইউ মে বি আস্কড ইন ভাইবা और इंटरव्यू व्हाटएवर। डिबग आईपी RIP, डिबग मतलब एरर फ्री करो, डिबग, तो इस कमेंट का इस्तेमाल क्यों होता है और क्या कैसे होता है
ये जस्ट ये जाके टाइप कर दो, कोई भी जो जो राउटर में तुम चाहो उस राउटर में बैठकर देखो यहाँ पर डिबग आईपी कमांड दे दिए। सो राइट साइड में क्या है देखो, मोस्ट ऑफ द रीप कॉन्फ़िगरेशन एरर्स इन्वॉल्व एन इनकरेक्ट नेटवर्क स्टेटमेंट, डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स और स्प्लिट हॉराइजंस। 3 रीजन के हिसाब से तुम्हारा नेटवर्क में एरर मतलब रीप कॉन्फ़िगरेशन में एरर जनरेट हो सकता है। क्या क्या? पहले तो गलत कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा नेटवर्क का। सेकंड, डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क, तुम जो सब नेटवर्क बनाया उसके साथ वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक एक नेटवर्क में है, दूसरा सबनेट जो मैंने बोला कि रीप सेम सबनेट मास्क यूज करता है, यहाँ पर तुमने सही तरह से सेम सबनेट मास्क यूज नहीं किया, गलती से हो गया है, 24 की जगह 26 या 26 की जगह 24, व्हाटएवर। सो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम जनरेट होगा। नेक्स्ट, स्प्लिट हॉराइजंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्प्लिट हॉराइजन क्या होता है ये हम बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर राउटिंग लूप के ऊपर कुछ डिस्कशंस है, तो हम उस टाइम में स्प्लिट हॉराइजन क्या है हम आएंगे। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তিনটে জিনিস থেকে হতে পারে। 1 নম্বর হতে পারে কি, তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু, তুমি কনফিগারেশন যেটা করছো নেটওয়ার্কে সেটা সঠিক হচ্ছে না, এটা একটা কারণ হতে পারে। সেকেন্ড রিজন হতে পারে যে তুমি, আমি এটা রিপের কথা বলছি, সেকেন্ড রিজন হতে পারে যে তুমি যে নেটওয়ার্কটা ইউজ করছো বা সাবনেট গুলো দিয়েছো দ্যাট ইজ ডিসকন্টিগুয়াস নেটওয়ার্ক। ডিসকন্টিগুয়াস নেটওয়ার্ক মানে তোমার এই নেটওয়ার্কটার মধ্যে কোনো সমতা নেই। সমতা নেই ইন দ্য সেন্স, তুমি একটা জায়গায় ইউজ করছো /24, আরেকটা জায়গায় করেছো /25, একটা জায়গায় করেছো /23, অটোমেটিক্যালি এরর জেনারেট হবে। তার কারণ আমি একটু আগে বলেছি যে সিঙ্গেল সাবনেট মাস্ক রিপ হচ্ছে ইউজ করে। তো তুমি এখানে মাল্টি সাবনেট মাস্ক করে ফেলেছো, ভুল করে হয়তো হতেই পারে, তো তাহলে এখানে কিন্তু ডিবাগ মানে বাগস আসবে। নেক্সট যেটা, সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে স্প্লিট হরাইজনস। আমি একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড বলছি, সেটা আমি পরে ডিসকাস করে দিচ্ছি আজকে। সেটা হচ্ছে স্প্লিট হরাইজন জিনিসটা কি। বেসিক্যালি স্প্লিট হরাইজন ইজ নাথিং, এটা একটা রাউটিং লুপের কনসেপ্ট। অনেক সময় হচ্ছে কি, যেটা আমি বলবো, আগের দিন একটু ডিসকাস করেছিলাম, যে লাস্ট দিন ডিসকাস হুয়া থা, যে আমি একটা প্যাকেট ফরওয়ার্ড করছি, সেই প্যাকেটটাই রিপিটেডলি আমার কাছে বারবার চলে আসছে। হোয়াট আই এম ফরওয়ার্ডিং, that is coming to me repeatedly, the same packet comes to me repeatedly. So automatically what is happening, a loop is generating. मैंने क्या किया, एक पैकेट को भेज दिया, वो पैकेट बार बार रिपीटेडली सेम इंटरफेस में बार बार मेरे पास आ रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ, कोई लूप जनरेट हो गया। जैसे कि तुम जस्ट ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा होता है ना, कोई रिकॉर्ड प्लेयर में कोई रिकॉर्ड अगर अटक जाए तो बार बार एक ही गाना गाना उस जगह में आके কাট হয়ে যাতা है। দেখবে রেকর্ড প্লেয়ারে কোনো গান বা আটকে গেছে, বা একই গান ওইখানে গিয়ে আটকে যাচ্ছে, বারবার বারবার ওই গানটা হচ্ছে, মানে গানটা হচ্ছে না, ওই ওই লাইনটা বারবার এসে স্ট্রাইক করছে। তখন আমরা কি করি, ওই রেকর্ডটাকে একটু স্কিপ করে দিই, গিয়ে পাশেরটায় চলে যাই, পাশের ট্র্যাকে ফেলে দিই। তো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমার প্যাকেটটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, আমার ইন্টারফেস থেকে আমি ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি, কিন্তু কোনো কারণে সেই সেম প্যাকেট বারবার করে আমার কাছে রিপিটেডলি আসছে। তার মানে কি, কোনো কারণে একটা রাউটিং লুপ জেনারেট করেছে যে প্যাকেটটা ওই রুটের বাইরে বেরোতে পারছে। তার ফলে কি হচ্ছে, ব্যান্ডউইথ কনজাম্পশন হচ্ছে, আমার কনজেশন হচ্ছে, অনেক কিছু কারণে আমার এই জেনারেট হচ্ছে এবং বারবার একই প্যাকেট ফরওয়ার্ড হচ্ছে। তো আমি लूपটাকে আটকাবো কি করে, कैसे ये जो राउटिंग लूप का कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग इसको रोक सकेंगे, रोक सकते हैं कैसे, दैट इज द प्रोसेस। उसके एक प्रोसेस है ये स्प्लिट हॉराइजन, जिससे ये राउटिंग लूप को हम क्लोज कर सकते हैं कि लूप जनरेट नहीं होगा। कैसे किया है ये हम बाद में आएंगे डिस्कशन में। So that is the process. One highly effective command for finding the REAP update issue is debug IPREAP. The debug IPREAP command displays the REAP routing updates as they are sent and received. यहाँ पर देख लो, debug IPREAP तुमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट लाइन में क्या है, REAP event debugging is on, मतलब तुमने ऑन कर दिया इसको डिबगिंग के लिए। मतलब ये जितना भी अपडेट आएगा ना उसके पास, ये सबको चेक करेंगे कि भाई इसके पास, इसके अंदर कोई एरर है कि नहीं, हर एक लाइन, हर एक अपडेट को ये चेक करेंगे। जैसे कि देखो,
कौन सा इंटरफेस में कौन सा अपडेट, कौन सा इंटरफेस में कौन सा नेटवर्क से कौन सा अपडेट आया, कौन सा टाइम में, ये इसको मिल जाएगा। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, द सेकंड लाइन, कौन सा एक हॉप मतलब एक राउटर को क्रॉस किया। सेकंड जो अपडेट आया 45 मिनट्स 33 सेकंड्स में अंदर, इसमें 2 राउटर क्रॉस किया। फिर से देखो 45 33 में 15 हॉप्स, जो मैंने रीप के बारे में बोला था कि रीप 15 हॉप्स अगर होगा तो 15 हॉप्स के अंदर क्या होगा, वो 15 हॉप्स में जाके अगर 0 to 15 वो सपोर्ट होता है, मतलब इंफिनिटी, मतलब वो तुम्हारा इंडेफिनिट, आई मीन सॉरी, वो जो हॉफ काउंट अगर रीच हो जाएगा 15, तो तब के अनरीचेबल नेटवर्क हो जाएगा। देखो यहाँ पर 15 हॉप्स हो गया। रीप सेंडिंग द अपडेट टू दिस 255 255 255, मैंने बोला क्या, मैंने उस दिन बताया था कि रीप का जो वर्जन 1 है वो अपडेट जब भेजता है तो वो ब्रॉडकास्ट के तौर से भेजता है। ब्रॉडकास्ट मतलब 255, देखो यहाँ पर वही है। लेकिन वो अगर रीप वर्जन 2 होगा तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करेगा इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट 224.009 पॉसिबली जो एड्रेस है। तो यहाँ पर कौन सा सीरियल में कौन सा नेटवर्क है ये दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा मेट्रिक वैल्यू क्या है, सब कुछ, मतलब एक क्लियर हिस्ट्री, ये तुमको एक डिबगिंग रिपोर्ट यहाँ पर दिखा दिया कि भाई ये नेटवर्क से ये आ रहा है, ये अपडेट कितना हॉफ क्रॉस कर रहा है, उसका मेट्रिक वैल्यू क्या होता है, वो कौन सा अपडेट ब्रॉड मतलब रीप ने जो ब्रॉडकास्ट किया कौन सा एड्रेस से ब्रॉडकास्ट किया है, सब कुछ यहाँ पर चलाएगा। डिबग रिपोर्ट, इट इज अ डिबगिंग रिपोर्ट। कोई गलत अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा कि भाई ये जगह প্রবলেম है, তোমাকে দেখে নিতে হবে যে তোমার ডিবাগিং রিপোর্টটা করলে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা ডিবাগ করছো মানে তুমি এই জায়গাটাকে ক্লিয়ার করছো, রিপোর্টটা দেখে তুমি দেখে নিচ্ছ একদম ক্লিয়ার কাট রিপোর্ট তোমার কাছে আসছে যে রিফ কনফিগারেশনে কোনো অ্যানোমালিজ আছে কিনা। ইন রিফ কনফিগারেশন whether in reef configuration there is any anomaly. Is it clear? Yes, sir. Okay. That is the important topic. Routing loop. ये राउटिंग लूप क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि राउटिंग लूप मींस তোমার কাছে একই প্যাকেট রিপিটেশন হচ্ছে তোমার কাছে ইন্টারফেসে আসছে। Routing loops can occur when inconsistent routing tables are not updated due to slow convergence in a changing network. একটা লুপ জেনারেট করে গেছে, একটা সার্কেল, মানে প্যাকেটটা পাঠালে ও আবার সেখানে আসছে, আবার পাঠালে আবার আসছে। সো রিপিটেডলি দ্য প্যাকেট ইজ কামিং টু মাই सेंडिंग इंटरफेस। सो दैट इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, इनकॉन्सिस्टेंट राउटिंग टेबल्स कैन ऑकर व्हेन इनकॉन्सिस्टेंट राउटिंग टेबल्स आर नॉट अपडेटेड ड्यू टू स्लो कन्वर्जेंस। समझ लो तुम्हारा जो नेटवर्क है मतलब राउटिंग टेबल का जो कंटेंट्स होगा राउटिंग टेबल के अंदर जो सही होना चाहिए, যেটা ঠিকভাবে আপডেট হওয়া উচিত ছিল, সামহাউ তোমার রাউটিং টেবিলে যে ডেটা এন্ট্রিটা হয়েছে, ইনফরমেশনটা এন্ট্রি হয়েছে, দ্যাট এন্ট্রি ইজ নট কারেক্ট। সেখানে কোনো ইনকনসিস্টেন্সি আছে, অর্থাৎ সেখানে কোনো রকম একটা গোলমাল আছে, গড়বড় আছে। তা এটার জন্য হতে পারে। তার ফলে কি হচ্ছে, তোমার যদি প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ওখানে পর থাকে এবং সঠিক থাকে, পরপর থাকে বললে হবে না, সঠিক থাকে, তাহলে কি হচ্ছে না, তাহলে তুমি যে ইনফরমেশন আপডেট গুলো পাঠাচ্ছ তোমার তোমার কোনো প্রবলেম হবে না। যেটা আমরা আগের দিন ল্যাবে দেখলাম যে আমি একটা রাউটিং জেনারেট করেছি, আমার কনফিগারেশন ঠিক ছিল, হচ্ছিল, প্রবলেম কোথায় ছিল, ওই যে 80 নেটওয়ার্কটা ঢুকছিল না, তার মানে আমার ওইখানে রাউটিং টেবিলে এন্ট্রিতে একটা প্রবলেম হচ্ছিল, তার মানে ওটাকে তখন আমরা যে কারেক্ট করলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার প্যাকেট ট্রান্সমিশন স্টার্ট হয়ে গেল। তাহলে এইরকম যদি অনেক অসংখ্য রুট তোমার ওখানে থাকে যেগুলো হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্ট, রেলিভেন্ট রুট নয়, সেক্ষেত্রে কি হয়, কনভার্জেন্সটা স্লো হয়। কনভার্জেন্স মিন্স রাউটিং আপডেট প্রত্যেকটার মধ্যে সেম হতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কনভার্জেন্স?
हम लोग कैसे कहते हैं कि एक राउटर कन्वर्ज हो गया, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए, मतलब उसका राउटिंग टेबल के अंदर होना चाहिए, सब इंफॉर्मेशन सही तौर से उस सब कुछ उस राउटिंग टेबल के अंदर चला है। मगर अगर समझ लो कि तुम्हारा नेटवर्क जो चल रहा है वहां पर 12 एंट्रीज होना चाहिए, तो जितना भी राउटर होगा उसके सब के पास अगर सही तौर से ये 12 एंट्रीज होगा, मतलब सब सब आर ऑल आर अपडेटेड, तो सबके पास सेम इंफॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम लोग जो लास्ट लैब क्लास में हम लोग देखे थे कि जितना भी वो जो 4 राउटर हम बनाए थे उसमें सर हर एक के अंदर जाके वो 6 रूट हमको मिल जाएगा, मतलब वो कन्वर्ज हो गया, मतलब सबके पास इंफॉर्मेशन अपडेट हो गया, जितना भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए सबके पास सेम इंफॉर्मेशन अपडेशन है। तो ये कब होगा? जब तुम्हारा राउटिंग इंफॉर्मेशन, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगा, नंबर वन। नंबर टू क्या, कन्वर्जन जितना भी फास्ट होगा, मतलब सबके पास डेटा जो एक्सचेंज किया अपडेट, ये जितना फास्ट होगा और सही तरह से होगा, तो उतना ही ফার্স্ট তোমার রাউটার কনভার্জ हो जाएगा। যত তাড়াতাড়ি তুমি পাঠাবে, তুমি তোমার রাউটিং ইনফরমেশন তাকে পাঠালো, সে তোমায় পাঠাচ্ছে, পাঠিয়ে কি করলে একদম আপডেট সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে। এটা কেন হচ্ছে? তার কারণ তুমি ঠিক ঠিক কনফিগারেশন করেছো, ইউ হ্যাভ দ্য আইডিয়া যে তুমি জানো আমার অমুক অমুক লোক অমুক জায়গায় আছে, আমাকে তাকে এই জিনিসটা পাঠাতে হবে, তো তোমার কাছে ক্লিয়ার আইডিয়া আছে, তুমি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছ, তারপর অনেক ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি কোনো কারণে ধরো এখানে একজন ভুলভাল লোক ঢুকে যায় যার আইডিয়া তোমার কাছে নেই, তাহলে তাকে ওই ডেটাটা দেওয়ার আগে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে এ কি আমার লিস্টে আছে, বা এ কি আমার, তার ফলে কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা রাউটার আপডেট পেতে দেরি হচ্ছে, কনভার্স হতে লেট হচ্ছে। सेम प्रॉब्लम इज हियर। जितना भी राउटर है सबके पास सब कुछ जानकारी, जितना भी जानकारी होना चाहिए था सबके पास हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट तुरंत चला जाएगा, तुरंत सब राउटर जितना भी राउटर होगा वो कन्वर्ज हो जाएगा। बट अगर ऐसा होगा कि कोई भी राउटर के पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आया तो जिससे उसको कोई प्रॉब्लम होता है कि ये क्या मेरा नेटवर्क है, ये क्या, मतलब कोई भी कंफ्यूजन अगर जनरेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस के लिए टाइम लगेगा, तो स्लो कन्वर्जेंस हो जाएगा। ये जो जब ये सिचुएशन आएगा, तो इसके मतलब किसी ना किसी तरह कोई ना कोई राउटिंग लूप जनरेट हुआ है, इसीलिए ये हो रहा है। और कॉन्वर्सली यू कैन से कि अगर ये जो हो गया, ये जो कोई हम कंफ्यूज है कि ये रूट मेरा है या नहीं, कि ये सही तरह से है मेरा, या इसको हमको अपडेट भेजना है, और इसके पास से मेरे पास अपडेट आना चाहिए, ये कौन है? अगर ये कंफ्यूजन चला आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट द राउटिंग। कन्वर्सली यू कैन से, जस्ट यहाँ पर जो पिक्चर है देखो, दिस नेटवर्क अनरीचेबल, यहाँ पर ऑल्टरनेट रूट है, ये जो अल्टरनेट रूट डिस्टेंस टी, मतलब ए, यहाँ पर ए बी सी डी, इसके पास ई है, सबके पास रूट भेज रहा है, लेकिन एक रूट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, मतलब कोई रूट इसमें ठीक तरह से ये इनकॉन्सिस्टेंट रूट है, तो ऑटोमेटिकली राउटिंग लूप जनरेट हो जाएगा। देखो ये जो लिखा हुआ है, अल्टरनेट रूट्स, स्लो कन्वर्जेंस एंड इनकॉन्सिस्टेंट राउटिंग, इसमें इससे राउटिंग लूप जनरेट हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस राउटिंग लूप, that is the first, counting to infinity, but sometimes you may get it as count to infinity, matter is same। क्या हुआ काउंट टू इंफिनिटी? काउंट टू इंफिनिटी मतलब, इंफिनिटी मतलब जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू। তো রিপকে হিসাব সে, রিপের কাছে আমরা কি বলেছিলাম, যে আমরা বলেছিলাম যে এ কিন্তু 16টা হফ কাউন্ট হলেই তারপর কিন্তু আনরিচেবল হয়ে যায়। 16 নম্বর রাউটার যেই রিচ করে, মানে 0 থেকে 15
ও যেই 16 নম্বর রাউটারটাকে রিচ করছে ও কিন্তু আনরিচেবল হয়ে যায়, তখন ওই রুটটা রাউটিং টেবিল থেকে সরে যায়। আমরা যদি এখানে এইটা করি যে কোনো একটা যখন দেখছি যে কোনো একটা রাউটিং লুপ জেনারেট করছে, আমরা তখন কি করলাম, যে রাউটারটার জন্য এটা হচ্ছে সেই রাউটারটাকে গিয়ে যদি তার ফোর্সফুলি হফ কাউন্টটাকে বাড়িয়ে দিই, আনরিচেবল করে দিই, তাহলে অটোমেটিক্যালি কি হবে, তার এন্ট্রিটা অন্যান্য রাউটার থেকে অফ হয়ে যাবে, কারণ সেটা কি হবে, আনরিচেবল নেটওয়ার্ক। তার ফলে আমার রাউটিং আপডেটটা তার কাছে যাবে না, এই লুপটা আমার এখানে ব্লক হয়ে যাবে। अगर जिस राउटर के हिसाब से ये प्रॉब्लम हो रहा है उस राउटर में जाके उसका जो तुम्हारा हॉफ काउंट होगा, सिंपल, उसका हॉफ काउंट फोर्सफुली उसको इंक्रीज करके 16 कर दो, बस। 16 हो जाने के मतलब अनरीचेबल डेस्टिनेशन, इनफाइनाइट वैल्यू, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी अनरीचेबल, ऑटोमेटिकली द जो पैकेट चला गया वो फिर से यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि उसके वो अनरीचेबल हो गया, तो ऑटोमेटिकली राउटिंग लूप जनरेट बंद हो जाएगा, यू मे क्लोज इट, दैट इज द प्रोसेस हियर। काउंट टू इंफिनिटी, उसको काउंट करके इंफिनिटी तक ले जाओ। इंफिनिटी कैसे बनाएंगे, हम लोग तो इंफिनिटी बना नहीं सकते, तो कैसे बना सकते हैं, जस्ट फोर्सफुली जाके कमांड दो, कमांड देके उसका रीड वैल्यू इंक्रीज, आई मीन हॉफ काउंट इंक्रीज कर दो, 15 या 16 कर दो, दैट्स ऑल, ऑटोमेटिकली राउटिंग लूप बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। স্যার এটা করলে স্লো হয়ে যায় না, হবে না স্লো, কোনটা, মানে না, ইনফিনিট? কাউন্ট টু ইনফিনিটি যে মুহূর্তে তুমি করবে এই নেটওয়ার্কটা রাউটিং টেবিল থেকে আউট হয়ে যাবে, তারপরে একটা কাউন্ট কমে গেল উল্টে আমার, ও তো আপডেট নেবেও না, আপডেট পাঠাবেও না, তাহলে কি হচ্ছে, তোমার তো ওই এন্ট্রিটা চলে যাচ্ছে রাউটিং টেবিল থেকে। এটার জন্যই তো তোমার ধরো লুপটা জেনারেট করছিল, বারবার করে একই প্যাকেট, তুমি যেটা বলছো বারবার করে একই প্যাকেট আসছে আমার কাছে, তাহলে কি হচ্ছে, কনজেশন হচ্ছে, ব্যান্ডউইথ কনজাম্পশন বেড়ে যাচ্ছে। আমি যেই ওর কাউন্ট টু ইনফিনিটিটাকে করে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে কি হলো, ও ওকে সরিয়ে দিল, ও রুট থেকে সরিয়ে দিল, যে আনরিচেবল রুট, ওকে রেখে আমার লাভ কি, যেই সরিয়ে দিল ওই লুপটা আমার বন্ধ হয়ে গেল, তারপরে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। এগুলো মানে অল দিস আর নেগেটিভ পয়েন্টস অফ রিপ, মানে এই জিনিসগুলো হয়, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। হ্যাঁ স্যার। আমি যদি ফোর্সফুলি, ওই জন্যই তো বলছি যে আমি ফোর্সফুলি কাউন্ট টু ইনফিনিটি যেই করে দেবো, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, ওই রুটটা ব্লক হয়ে যাবে, থাকবেই না, কারণ রিপ কি বলেছে, রিপ তো ইনফাইনাইট রুটকে কাউন্ট করতে পারে না, মানে তোমার নাম্বার অফ কাউন্ট যদি বেড়ে যায়, তখন তো ওই জায়গার ওই ইন্টারফেসটাকে ব্লক করে দেবে, যে না এই ভাই আনরিচেবল রুট, একে পাঠানোর দরকার নেই, তার ফলে আর ওই প্যাকেটটা রিভার্ট করে আমার কাছে আসবেই না, ব্লকড হয়ে যাবে, এন্ট্রিটা ক্লোজ করে দেবে। তার রাউটিং টেবিলে যদি এন্ট্রি না থাকে, ও কাকে পাঠাবে আপডেটটা, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। এই যে स्पेसिफाई ए मैक्सिमम वेक्टर मैट्रिक एज इंफिनिटी, कैसे बनाएंगे, जस्ट ये देखो राउटिंग टेबल में जाके मैक्सिमम मैट्रिक 16 कर दो, नेटवर्क 1 इज अनरीचेबल हो जाएगा, बस। नेटवर्क 1 जब अनरीचेबल हो गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बाकी जो नेटवर्क सब चलेगा, वो नेटवर्क अलग हो जाएगा, उसका कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आएगा, एंड इट विल ब्लॉक द राउटिंग लूप जनरेट ही नहीं होगा इसमें। ओके, ইয়েস স্যার। दिस इज द स्प्लिट हराइजन। व्हाट इज स्प्लिट हराइजन, स्प्लिट माने की, स्प्लिट के मतलब क्या होता है बताओ तो। আলাদা করা কিছু, ভাগ করা। এক্স্যাক্টলি। তো স্প্লিট হরাইজন মিন্স এখানে কি হচ্ছে, আমি স্প্লিট হরাইজন মানে আমি বলে দিলাম যে তুমি যে ইন্টারফেসটা দিয়ে আমার ডেটাটা ফরওয়ার্ড হচ্ছে, তুমি এই ইন্টারফেসে এই প্যাকেটটাকে ফেরত পাঠাবে না, পরিষ্কার কথা। অর্থাৎ আমরা বলি না যে এই যে আমি যা দিয়েছি তা আমি আর ফেরত নেবো না, তার মানে কি হলো,
তুমি তোমার বন্ধুকে একটা জিনিস দিয়েছো, সে বলো ভাই এটা আমার পছন্দ নয়, তোমাকে আবার ব্যাক করালো। তুমি বলে নে ভাই নে এটা, আবার দিলে সে আবার ব্যাক করলো, তার মানে এখানে লুপ জেনারেট হচ্ছে, সেম জিনিস তোমার কাছে বারবার আসছে। তুমি যেই পাঠালে তুমি বলে দিলে যে ভাই আমি যে হাতে দিচ্ছি আমি সেই হাত দিয়ে তোমার ফেরত জিনিস আমি নেব না, তুমি তাকে দিয়ে ছেড়ে দিলে। সে কিন্তু তোমাকে আর ব্যাক করাতে পারছে না, কারণ তুমি আগেই এটা বলে দিয়েছো, অলরেডি ইউ হ্যাভ টোল্ড ইট, তুমি তাকে এটা বলে দিয়েছো। তাই জন্যে ওই প্যাকেটটা কিন্তু ওর কাছে আর আসছে। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्लिट हॉराइजन। जो इंटरफेस से एक बार ये पैकेट निकल गया, उस इंटरफेस में सेम पैकेट सेकेंड टाइम ये नहीं आएगा। दैट इज द स्प्लिटिंग, यू आर स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर दिया कि भाई ये पैकेट हम भेज दिया तुम्हारे पास, ये पैकेट ये हिसाब से हम रिसीव नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड द स्प्लिट हॉराइजन। स्प्लिट हॉराइजन। शाहिद और ये सब क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। বাকিরা ওই যে এ আছে আমাদের স্যার কি বলে মনীষ, এরা স্যার আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ বলে দিচ্ছি। দেখো এই যে ডি রাউটারটা রয়েছে, এরা তো সবাই সবাইকে আপডেট পাঠাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। এই যে ইন্টারফেসটা রয়েছে, এখান থেকে বলে দিলাম যে ভাই আমি এই ইন্টারফেস দিয়ে যখন সেন্ড করে দিচ্ছি, এই ইন্টারফেসে তোমার এই কোনো ইনফরমেশন আর রিসিভ করবো না। তারপরে কি হলো, একবার এই ইন্টারফেস দিয়ে যদি বেরিয়ে যায়, তারপরে ওই ইন্টারফেসে সেম ডেটাও ফরওয়ার্ড করতে পারবে না। দেখো এখানে লিখেছে ডি তে এসে ডু নট আপডেট দ্য রাউটার এ অ্যাবাউট রুটস টু নেটওয়ার্ক 1। এই যে নেটওয়ার্ক 1টা রয়েছে এর ইনফরমেশন ও পেয়েছে, পেয়ে ওকে আপডেট এখানটাকে স্প্লিট হরাইজন এনেবল করে দিল। তার মানে একবার এই প্যাকেটটা যখন ওখানে যাচ্ছে, এর এখান থেকে কোনো ফেরত ওই ইন্টারফেসে আর আসবে না। আমি তার জন্য কি করতাম, একই ইন্টারফেসে আমি রিসিভ করছিলাম, আমি ব্লক করে দিলাম, যে ওয়ান্স মানে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক করে দিলাম, যে আমি পাঠিয়ে দিলাম, তুমি আর তোমার কাছ থেকে ফেরতটা নেব না, মানে আমি ভাগ করে দিলাম। স্প্লিট হরাইজন এটাকে বলা হয়। মানে ডি এ কে বলছে ভাই আমার যে নেটওয়ার্ক 1 আছে আমি তার ইনফরমেশনটা তোমাকে ফরওয়ার্ড করলাম, সেম ইনফরমেশন কিন্তু তোমার কাছ থেকে তুমি আমায় রিভার্ট করবে না, কারণ আমি নেব না। ওয়ান্স আই হ্যাভ সেন্ড ইট টু ইউ, দ্যাট ইজ অল, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিসিভ এনি আপডেট ফ্রম ইউ। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। অর্থাৎ আমি বলে দিলাম যে ভাই আমি এই যে দিলাম তোমাকে জিনিসটা, তোমার কাছ থেকে আমি কিন্তু জিনিসটা ফেরত নেব না। मैंने दे दिया तुमको, मेरे पास जो है मैंने तुमको दे दिया, बट इन टर्न अगर तुम चाहो वो सेम जिनिस हमको देने के लिए, सॉरी हम ले नहीं सकते। दैट इज द प्रोसेस इज स्प्लिट हॉराइजन। पहले क्या होता था, सेंड रिसीव, इस टाइम होगा सेंड ओनली नॉट रिसीव, ये डिवाइड कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्लिट हॉराइजन। আমি কি বোঝাতে পারলাম না পারলাম না? सर अगर पैकेट फेल हो जाता है तो? हाँ हाँ बोलो बोलो। पैकेट फेल हो जाता है तो रीच कौन सा नहीं करता है मतलब डेस्टिनेशन। कौन सा पैकेट बोलो, ये पिक्चर देके बोलो कौन सा पैकेट कहाँ से। से अगर सेंड करते हैं डी से ए पे, आ, फिर अगर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता, रीच नहीं कर पाते। हाँ नहीं, तुम्हारा अगर डी से कोई पैकेट निकाल के सीधा जाए, एज पर द पिक्चर, ये जो पिक्चर है डी से डायरेक्टली कनेक्टिविटी है ए के पास, तो डे क्या किया, डी बोला कि भाई मेरे पास नेटवर्क 1 का जो जो हिसाब है, जो जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, हम तुमको भेज दिया, तुम ले लो, लेकिन तुम्हारे पास से वो सेम इंफॉर्मेशन हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो अब मेरे पास है, तो मेरे को तो नहीं चाहिए वो सेम इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास से। तुमको एक बार भेज दिया, तो ये जो इंटरफेस से भेज रहा हूँ, इस इंटरफेस में सेम इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम हम नहीं रिसीव करेंगे। क्यों होगा, देखो ये तो नेटवर्क 1 है, तो यहाँ से नेटवर्क 1 का इंफॉर्मेशन जा रहा है, सेम थिंग ये नेटवर्क 1 का इंफॉर्मेशन इसके पास भी जा रहा है, ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन इसके पास भी जा रहा है, तो इसका काम होगा नेटवर्क 1 का इंफॉर्मेशन इसको भेजना, तो ये भी नेटवर्क 1 का इंफॉर्मेशन भेजेंगे, ये भी भेजेंगे, तो सेम इंफॉर्मेशन तो राउटिंग लूप जनरेट होगा, सेम इंफॉर्मेशन ये इंटरफेस में रिपीटेडली चला आएगा। लेकिन तुमने अगर बोल दिया कि भाई मेरे पास से नेटवर्क 1 का इंफॉर्मेशन हम यहाँ से भेज दिया, वो सेम नेटवर्क 1 का इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस में आई वांट रिसीव,
ब्लॉक हो गया। सेम नेटवर्क इंफॉर्मेशन रिपीटेडली नहीं चला है। समझ में आया? पैकेट लॉस तो हो सकता है, समझ लो ये नेटवर्क बंद हो गया अचानक, तो पैकेट लॉस तो हो जाएगा। पैकेट लॉस तो ये जो राउटिंग लूप जनरेट होता है इसके लिए तो पैकेट लॉस जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है रिपीटेशन ऑफ सेम इंफॉर्मेशन। समझ लो मेरे पास एक बुक है, कोई भी एक बुक है, समझ लो कि जंगल बुक है, उसका एक जानकारी मेरे पास जंगल बुक का बुक है मेरे पास, तो मैंने तुमको दे दिया। मेरे पास ऑलरेडी जंगल बुक 2 है, एक तुमको दे दिया, तुमने पढ़ के फिर से हमको डाल दिया, तो हमने बोला अरे भाई मेरे पास है तो इंफॉर्मेशन, तो तुम तो जो दे रहे हो वो तुम रख लो, तुम क्यों अब फिर से मेरे को ये दे रहे हो? तो बोला कि नहीं सर आप ले लीजिए। तो क्या हुआ, वो सेम बुक मेरे पास चला आया। तो अगर हमने बोल देंगे कि भाई मनीष या शहीद जो भी है कि भाई मैंने जो दे दिया वो सेम चीज मेरे पास मत भेजो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेम बुक तुम ले लिया, लेकिन तुम्हारे पास ये इंस्ट्रक्शन है कि ये सेम बुक सर के पास भेजना नहीं चाहिए, तो सेम बुक मेरे पास नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा राउटिंग लूप। जो इंटरफेस में जो इंफॉर्मेशन निकल गया वही इंटरफेस में वही इंफॉर्मेशन हम दोबारा नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ द स्प्लिट हॉराइजन। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. नहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। Say advantage uses. বুঝতে পারলাম না, একটু বলো। Say advantage uses क्या है sir? एडवांटेज तो ये है राउटिंग लूप ब्लॉक हो जा रहा है, फिर से दोबारा राउटिंग लूप जनरेट नहीं होगा। से मेन थिंग इज क्या, राउटिंग लूप का सेम इंफॉर्मेशन है, ये सेम बेसिक पॉइंट है होता है कि सेम इंफॉर्मेशन एक ही इंटरफेस में बार बार रिपीटेडली वो आ रहा है। तो हमने तो बोल दिया कि भाई जो इंटरफेस में हम जो जो तुमको भेज दिया जो इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन हम रिसीव नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन रिवर्ट करके मेरे पास नहीं आएगा वही इंटरफेस में, तो इंटरफेस में राउटिंग लूप बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम इज राउटिंग लूप। अगर सेम इंफॉर्मेशन रिपीटेडली तुम्हारे पास चलाएगा तो तुम काम कैसे करोगे? कोई भी अपडेट दूसरा अपडेट तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो तुम्हारा टेबल राउटिंग टेबल कैसे अपडेट होगा, कैसे तुम कम्युनिकेट करोगे दूसरा जो अदर्स जो राउटर्स है उसके साथ? यही प्रॉब्लम है कि राउटिंग लूप जनरेट हो सकता है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि 2-3 चीज याद रखना राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के टाइम। कॉन्फ़िगरेशन सही होना चाहिए, सही नेटवर्क होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन ठीक होना चाहिए। सब कुछ अगर ठीक होगा तो राउटिंग लूप जनरेट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम होता है राउटिंग लूप जनरेट होने के लिए, ये प्रॉब्लम होता है कि इनकॉन्सिस्टेंट रूटर चलाया या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम चला आया, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस जो टाइम होगा अपडेशन अपडेट होने के लिए जितना चाहिए टाइम चाहिए वो टाइम ज्यादा लगेगा, तो जितना टाइम ज्यादा होगा राउटिंग लूप का जनरेट होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। दैट इज द थिंग, तो दैट इज द मेरिट। स्प्लिट हॉराइजन बाय डिफॉल्ट स्प्लिट हॉराइजन एनेबल होता है हर एक राउट और हर एक सिस्को राउटर पे, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्प्लिट हॉराइजन होगा तो राउटिंग लूप जनरेट नहीं होगा। राउटिंग लूप जनरेट नहीं होने से सब जो तुम्हारा ये जो नेटवर्क चलेगा, जो जितना बड़ा नेटवर्क होगा या जितना छोटा नेटवर्क होगा चलेगा, वो सही तरह से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इज द मेरिट, मतलब एडवांटेज। समझ में आया क्या? Yes sir. कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। से रिमूव कर सकते हैं क्या? हाँ वो कमेंट देके उसको डिसेबल कर दो। तो किसको, स्प्लिट हॉराइजन को? Yes sir. स्प्लिट हॉराइजन कमांड देके डिसेबल कर दो, जो भी कमांड को ऑफ करना है उसके आगे डिसेबल कमांड यूज करो, डिसेबल स्प्लिट हॉराइजन। स्प्लिट हॉराइजन बंद हो जाएगा तो तुम्हारा राउटिंग लूप जनरेट हो जाएगा।
हो सकता है, पॉसिबिलिटी 80% है। ओके, ओके सर। मतलब ये तुम्हारा कमेंट है, जिस कमेंट से इसको डिसेबल, इसको फिर से एनेबल, सब कुछ तुम कर सकते हो। राउटिंग लूप प्रिवेंट के लिए और एक पॉइंट है, स्प्लिट हॉराइजन होता है और एक होता है रूट पॉइजनिंग। ये पॉइजन क्या होता है? पॉइजन देके हम लोग क्या करते हैं, किसी को मार देते हैं। तो यहाँ पर रूट पॉइजनिंग मतलब फोर्सफुली हम जाके उस रूट को मार दिया। मार दिया मतलब उसको डिसेबल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका कोई भी इंफॉर्मेशन, बाकी जो इंफॉर्मेशन होगा उसके पास नहीं आएगा। जैसे कि देख लो, ये जो राइट साइड में राउटर ई है, उसके पास जो नेटवर्क है उसको रूट पॉइजन कर दिया, मतलब वो रूट को खराब कर दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस रूट का कोई इंफॉर्मेशन बाकी जो राउटर उसके पास नहीं आएगा, तो राउटिंग लूप नहीं जनरेट होगा। देखो, व्हेन नेटवर्क 5, ये जो नेटवर्क 5 है, goes down, router E initiates root poisoning by entering a table entry metric of 16 unreachable। तो सेम इसको रूट पॉइजन कर दिया। तो भाई इसके लिए सब प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, फांसी देते हैं ना, ये मतलब ये गुनाह तुमने किया है, इसके लिए तुमको फांसी मिलेगा। फांसी होने से ये होगा कि एक सिग्नल बाकी लोग के पास जाएगा कि भाई ये गुनाह के लिए ये इसको फांसी मिल गया, तो इसीलिए हम फिर से ये गुनाह नहीं करेंगे, तो उसको मार दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, रूट पॉइजन कर दिया, ये रूट को मार दिया। कैसे? वो हाफ काउंटिंग इंक्रीज करके 16 कर दो, ऑटोमेटिकली रूट पॉइजन हो जाएगा, उसका कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली राउटिंग लूप जनरेट नहीं होगा। अगर इस रूट के लिए कोई भी लूप जनरेट होगा तो उस रूट को पॉइजन कर दो, रूट पॉइजनिंग कर दो, ऑटोमेटिकली वो रूट खत्म हो जाएगा। ये एक राउटिंग लूप को बंद करने का सेकंड तरीका है, थर्ड तरीका है। फर्स्ट काउंट टू इंफिनिटी, सेकंड स्प्लिट हॉराइजन, थर्ड रूट पॉइजनिंग। हर एक का प्रोसेस है, इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, रूट पॉइजनिंग इज यूज्ड बाय वेरियस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम large routing loops and offer explicit information when a subnet or network is not accessible. This is usually accomplished by setting the hop count to one more than the maximum. मैक्सिमम हॉप काउंट कितना तक सही सकता है ये 15 तक, तुम उसको 16 कर दो। जितना तक वो रिसीव कर सकता है, जितना तक वो सह सकता है, उसके ज्यादा कर दो तो ऑटोमेटिकली इंटॉलरेबल रूट हो जाएगा। ये नहीं भाई, ये 16 रूट हो गया, मतलब वो रूट को पॉइजन कर दिया, वो रूट अनरीचेबल रूट है, उसका उसके पास से कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले नहीं सकते, दे भी नहीं सकते। जाओ भाई तुम जाओ, दिस इज द रूट पॉइजनिंग। समझ में आया? तो अगर तुमको पूछा गया कि भाई राउटिंग लूप क्या है, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा है तुम्हारे पास कितना ऑप्शंस है ये राउटिंग लूप को ब्लॉक करने का। तो पहला है काउंट टू इंफिनिटी, सेकेंड हुआ है स्प्लिट हॉराइजन, थर्ड है रूट पॉइजनिंग। इसके नोट हम दे देंगे, अपलोड कर देंगे। ये है रूट पॉइजनिंग। नेक्स्ट है ट्रिगर्ड अपडेट, मतलब फर्स्ट हुआ काउंट टू इंफिनिटी, सेकेंड हुआ तुम्हारा स्प्लिट हॉराइजन, थर्ड हुआ वो रूट पॉइजनिंग, फोर्थ हुआ है ट्रिगर्ड अपडेट। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रिगरिंग करा, जैसे कि कैरम में होता है ना, एक घुटी को तुमको मार कैसे ऐसे मारते हो, इसको कहते हैं ट्रिगरिंग करा, इसको बोलता है ट्रिगरिंग, ट्रिगर कर रहे हो। जैसे कि हम लोग रिवॉल्वर में बोलता है ट्रिगर्ड, मतलब वो हैमर जाके उसके पास मरेगा तो ये गोली निकल कर बाहर चले जाएगा।
तो दिस इज कॉल्ड द ट्रिगर्ड अपडेट. व्हाई? New routing tables are sent to neighbor routers on a regular basis. Obviously. For example, RIP updates occur every 30 seconds. ये तो हम लोगों के पास जानकारी है कि every 30 seconds इंटरवल में हर एक जितना भी तुम्हारा RIP राउटर होगा वो 30 सेकंड में वो अपडेट भेजेंगे. हो सकता है सही उसके पास कोई नया नहीं है तो सेम अपडेट भेजेंगे. हो सकता है नया कोई चेंज होगा. जो भी हो 30 सेकंड्स इंटरवल में वो लोग भेजेंगे. So, however, a triggered update is sent immediately in response to some change in the routing table. मतलब समझ लो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, हम तुमको भेज दिया, शाहिद को भेज दिया, शाहिद ने भेज दिया बिबू को, बिबू भेज दिया तुम्हारा मनीष को, सबको पास भेज दिया. तो मनीष, बिबू, शाहिद, मैं और जो जो तुम्हारा है सबके पास, सुदीप, तो जो भी है सबके पास इंफॉर्मेशन सबके बारे में एकदम ठीक ठाक है. मतलब हम जितना भी राउटर्स यहाँ पर है सब कन्वर्ज्ड है. अब जाके किसी भी नेटवर्क में कोई भी जरा सी चेंज आया तो तब क्या होगा? ये ट्रिगर्ड अपडेट होगा. द ट्रिगर्ड अपडेट इज सेंट इमीडिएटली इन रिस्पॉन्स टू सम चेंजेस इन द राउटिंग टेबल. राउटिंग टेबल में कोई चेंज होगा तो ये एक नया तौर से अपडेट सबके पास जाएगा. उसको कहते हैं ट्रिगर्ड अपडेट. स्ट्राइकिंग, ये अपडेट हम भेज रहे हैं. that is why it is called trigger update. The router that detects a topology change immediately sends an update message to the adjacent routers that in turn generate triggered updates notifying their adjacent neighbors of the change. समझ लो मेरे पास कोई चेंज हुआ, मैंने तुरंत क्या किया, मनीष को भेज दिया कि भाई मनीष तुम देख लो ये अपडेट. जब मनीष के पास आया तो मनीष तुरंत उसके साथ जुड़ा हुआ बिबू है, सुदीप तो है, शहीद है, जो जो है, रहित है, सबके पास ये अपडेट, एक ट्रिगर्ड अपडेट, ये ट्रिगरिंग कर दिया कि भाई ये चेंज हुआ, ये ले लो. तो सबके पास वो ट्रिगर्ड अपडेट चला आएगा कि ये नया चेंज एक नेटवर्क में जरा सी हुआ है. यू टेक दिस. व्हेन ए राउटर फेल्स an update is sent immediately rather than waiting on the update timer to expire. When a router fails, जब एक राउटर फेल हो जाता है, an update is sent immediately. वो जो भेजते हैं राउटर का अपडेट, then waiting on the update timer to expire. वो जो एक्सपायर होगा, कब टाइमर एक्सपायर होगा कोई भी होगा वो नहीं. राउटर फेल हुआ है भाई, मार दो ट्रिगर अपडेट सबके पास. The triggered updates used in conjunction with the route poisoning ensure that all routers know of failed routes before any hold down timers can expire. होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर होने के पहले ही कोई भी रूट अगर ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा? ये ट्रिगर्ड अपडेट रूट पॉइजनिंग के हिसाब से सबके रूट पॉइजनिंग तो होगा ही. हाँ, एक मिनट होल्ड करो. हाँ, जस्ट मोमेंट. सो ये जो ट्रिगर्ड अपडेट हुआ है, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा ये ट्रिगर्ड अपडेट है, तो कैसे क्या क्या कहता है कि रूट पॉइजनिंग. रूट पॉइजनिंग मतलब हम बोल दिया कि भाई ये जो राउटर है इसका जो रूट है वो तो कोई भी हिसाब से वो बाहर चला गया, तो भाई उसको रूट पॉइजन कर दो. रूट पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? उस रूट को अनरीचेबल कर देना, 16 हॉप काउंट कर देना. जब वो कर दिया तो बाकी जो राउटर है उसके पास कैसे वो इंफॉर्मेशन मिलेगा कि भाई वो पर्टिकुलर नेटवर्क का रूट मेरे पास जो है वो अनरीचेबल है या उसका एंट्री हटा दो. कि तुरंत हर एक राउटर ट्रिगर्ड अपडेट भेज देंगे कि रूट पॉइजन हो गया भाई, ट्रिगर्ड अपडेट भेज दिए, दे दिया भाई. ये जो राउटर इसके साथ जो जुड़ा हुआ नेटवर्क है
वो रूट पॉइजन हो गया, मतलब वो अनरीचेबल हो गया, उसको हटा दो, वो उसको अपडेट नहीं मिलेगा। तो सब राउटर के पास चला गया ट्रिगर्ड अपडेट, और सब राउटर ट्रिगर्ड अपडेट भेज दिया तुरंत। कौन सा टाइम में भेजेंगे कि ये जो होल्ड डाउन टाइमर्स था ना, उस टाइम हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, वो होल्ड डाउन टाइमर्स एक्सपायर के होने के पहले ये भेज दिया। होल्ड डाउन टाइमर जो एक्सपायर होगा, एक्सपायर होने के पहले ही ये ट्रिगर्ड अपडेट चला गया। अपडेट जाके सब राउटर को अपडेट कर दिया कि भाई ये पर्टिकुलर जो नेटवर्क है वो रूट पॉइजन हो गया, तो उस रूट का कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट्स अब नहीं मिलेगा। So that is called the triggered updates. क्योंकि तुम कह सकते हो कि भाई क्यों, তোমরা বলতে পারো যে কেন স্যার হোল্ড ডাউন টাইমারটা চলে গেলে তারপরে হলে ক্ষতিটা কি হতো। তার কারণটা চিন্তা করে দেখো, যদি হোল্ড ডাউন টাইমারের পর হতো তাহলে এই রুটটার আপডেট আবার চিন্তা করতে হতো, বা এই রুটটা আবার ফেরত আসতো। কিন্তু আমার হোল্ড ডাউন টাইম এক্সপায়ার হওয়ার আগেই আমি যদি বলে দিই যে এই রুটটা চলে গেছে, তাহলে হোল্ড ডাউন টাইমার এক্সপায়ার করার পর এই রুটটা নিয়েও আর চিন্তাই করবে না। अगर तुम्हारे पास होल्ड डाउन टाइमर से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 50 सेकंड्स का है, तो उसके होल्ड डाउन टाइमर जब तक वो होल्ड करके रखेगा, तो 50 सेकंड्स के बाद वो फिर सर्च करने लगेगा कि भाई कहाँ है ये रूट। लेकिन ये 50 सेकंड्स के अंदर ही, उसके पहले ही हम उसको बता दें कि भाई ये जो रूट है इसको मत ढूंढो, क्योंकि ये रूट पॉइजन हो गया, ये अपलोड अपडेट कर दो, ये अपडेट जो भी है वो अपडेट हटा दो। तो आफ्टर 50 सेकंड इट वोंट सर्च for this route again. That is why it is said that all the routers know of failed routes before any hold down timers can expire. हर एक होल्ड डाउन, जितना भी राउटर्स होगा हर एक के पास तो एक होल्ड डाउन टाइमर होगा, तो वो एक्सपायर होने के पहले ये ट्रिगर्ड अपडेट उसके पास चला जाएगा। उसको बता देंगे कि भाई ये रूट को पॉइजन हो गया, हटा दो, फिर से मत ढूंढो। दैट इज द ट्रिगर्ड अपडेट्स। আমি কি বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? আরে ভাই উত্তর তো দেবে নাকি রে বাবা? Yes, sir. বাকিরা কোথায় গেল? বাকিরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? কি হলো? সুদীপ্ত কোথায়? সৌমাল্য কোথায়? ব্যাপারটা কি? তারা গেল কোথায়? सर एक बात पूछे। मनीष है ठीक है, विभू है ठीक है, राजर्षि, वेयर इज राजर्षि? सायन, তুমি শুনতে পাচ্ছ না? মানে তুমি বলতে পারছো না? সুদীপ্ত কোথায়? यस सर। তা আমি যে এতবার ধরে নামটা বলছি তুমি শুনতে পাচ্ছ না? ঋতব্রত কোথায়? वेयर इज ঋতব্রত? হ্যাঁ স্যার, এই রাজর্ষি বলছেন নাকি মাইক খারাপ হয়ে গেছে। ঋতব্রত কোথায়? আমি ঋতব্রত কোথায় জানতে চাইছি। ওয়্যার ইজ ঋতব্রত? শুভদীপ কোথায়? ওয়্যার ইজ শুভদীপ? তোমার আবার কি প্রবলেম? তোমাদের প্রবলেমটা কি? নো মাইকটা, তাহলে মাইক না হলে তুমি আমার সাথে কথা বলবে কি করে? তুমি যদি বুঝতে কোনো জিনিস না পারো তাহলে তুমি আমায় বোঝাবে কি করে যে আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না? আর মাইক প্রবলেম হলে মাইক গুলো দেখাচ্ছ না কেন? এতদিন ধরে ক্লাস চলছে। शाहिद कहाँ पर हो? यस सर। ओके गुड। मनीष भी है।
এই রোল নাম্বার 6 কার? হু ইজ রোল নাম্বার 6? হু ইজ রোল নাম্বার 6? রোহিত তুমি কি আছো এখানে? স্যার জয়দীপ রোল নাম্বার 6 জয়দীপ স্যার। ওই তো জয়দীপে দেখাচ্ছে, স্ক্রিনে দেখাচ্ছে স্যার, ডান দিকে নিচের দিকে দেখুন, একদম আমি তলায়। দেখেছি দেখেছি। এ কোথায়, রোহিত কোথায় গেল? सर उसका Where नेट is Rohit? प्रॉब्लम हो रहा है मनीष? सर उसका नेट का प्रॉब्लम हो रहा है रोहित का हाँ ठीक है मनीष, तुमको हम बोल दे, जिसके पास से मेरे पास कोई आवाज नहीं आ रहा है उसको नोट करके हमको बोल देना, उसको एब्सेंट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। ঋতব্রতর কোনো মানে সাড়াই পাচ্ছি না আমি। ঋতব্রত আছে কি ক্লাসে আমি জানছি না। আমি এই মাইক প্রবলেম এই প্রবলেম আমি কিন্তু এইসব জিনিস শুনবো না ফ্রম দ্য নেক্সট ডে, ফ্রম দ্য ভেরি নেক্সট ডে। আমি কিন্তু সাডেনলি এরকম ধরবো, তখন যদি কাউকে না পাই কিন্তু মুশকিল হবে, আমি বলে দিলাম। লগ ইন করবো, লগ ইন করে ক্লাসে বসে থাকবো, বেরিয়ে চলে যাবো, আমার ক্লাসে হবে না। This is the triggered update graphics. With the triggered update approach, routers send messages as soon as they notice a change in their routing table. 10.4.00 F0/0 इंटरफेस जो है सी में, उसके पास से एक नेटवर्क अनरीचेबल हो गया, ऑटोमेटिकली इट विल फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट राउटर, फ्रॉम नेक्स्ट राउटर एंड फ्रॉम नेक्स्ट राउटर। इसीलिए लिखा हुआ है कि विद द ट्रिगर अपडेट अप्रोच राउटर सेंड मैसेजेस एज सून एज दे नोटिस ए चेंज इन देयर राउटिंग टेबल। कोई भी राउटिंग टेबल में जब भी इसका कोई भी चेंज होगा तो तुरंत वो चेंज सब राउटिंग टेबल में उसके पास चला आएगा। दैट इज द अप्रोच ऑफ द ट्रिगर अपडेट। दिस इज द होल्ड डाउन टाइमर्स जो मैंने लास्ट दिन बताया था कि होल्ड डाउन टाइमर क्या है। ये जो नेटवर्क वन डाउन हो गया, इसके पास है, ये जो ए के पास जो राउटर है ए बी सी डी, ये ई होगा, शायद ई होगा, तो ई के पास, ई के नेटवर्क जो डाउन है, ये नेटवर्क सबके, ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये नेटवर्क अपडेटेड या नेटवर्क वन डाउन, देन बैकअप फॉर ए टाइम, देन डाउन वन सेकेंड। तो ये जो नेटवर्क डाउन, ये सबके पास चला है, ये सब अपडेट आफ्टर होल्ड डाउन टाइम, अपडेट आफ्टर होल्ड डाउन टाइम, अपडेट आफ्टर होल्ड डाउन टाइम, अपडेट आफ्टर होल्ड डाउन टाइम। जो भी टाइम होगा उसके पास ये नेटवर्क जो अपडेट हो गया, वो अपडेट इंफॉर्मेशन सबके पास चलाएगा होल्ड डाउन टाइमर के बाद। लेकिन अगर ट्रिगर अपडेट हम भेज देंगे तो बिफोर द होल्ड डाउन टाइमर अपडेशन ये अपडेट चलाएगा। सॉरी, क्लीन स्टेट चला है। दिस इज द प्रोसेस। Am I clear or not? Yes sir, hold on time में accept करें sir। Yes, sir. ওকে, তাহলে এইটা তোমাদের রিপের গল্পটা টোটালি চলে গেল, মানে রিপ যেটা। এরপরে আমরা যেটা আসবো, ডিস্টেন্স ভেক্টর আমরা রিপ করলাম, আর আমি বলেছিলাম যে ভার্সন 2 এর ফিচার গুলো বলে দিয়েছিলাম। আর তুমি যদি মনে করো যে ওই আগের দিন আমরা যে তোমার ওই কমেন্টটা করছিলাম,
যে রাউটারে ঢুকে কনফিগারেশনে গিয়ে রাউটার স্পেস রিপ কিচ্ছু করবে না। যদি ভার্সন 2 করতে চাও রাউটার স্পেস রিপ এন্টার করার পর ভার্সন 2 করে এন্টার মেরে দাও, তাহলে ওটা অটোমেটিক্যালি ভার্সন 2 তে চলে যাবে। আমি কি একবার দেখিয়ে দেবো জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও। এই যে রাউটারটা রয়েছে, ধরো আমি এই রাউটারে রিপ ভার্সন 1 করেছি, আমি গেলাম সিএলআই তে গেলাম, রাউটার এতে আমি ধরো এখানে গেলাম কনফিগ, সরি এনেবল। এগুলো কিন্তু সবই তোমার এতে আছে, কি বলে রিপ ভার্সন 1 আছে। কি করে বুঝবো? শো আইপি দেখে নাও, রিপে আছে, সবকটাই রিপে আছে। কোন কোন নেটওয়ার্ক থেকে আসছে, কোন কোন নেটওয়ার্কে, সবকিছু এখানে আমার বলে দিচ্ছে, যেটা আমি আগের দিন কনফিগার করে গেছি। এবার আমি কি করলাম, অনেক্সপ্রেসটি ঢুকলাম, রাউটার স্পেস রিপ লিখলাম, ঢুকে গেলাম। এখানে গিয়ে সিম্পল লেখো ভিইআর ভার্সন 2, এন্টার করো, ভার্সন 2 তে চলে আসবে। এবার যা কনফিগারেশন সব এক, আর কোনো ডিফারেন্স নেই, শুধু এখানে এই কমেন্টটাকে জুড়ে দিলেই হয়ে যাবে। মানে রিপ ভার্সন 1 যা যা আছে শুধু রিপ করার পর ভার্ট 2 করে দাও, ভার্ট 2 করে দিলে এটা ভার্সন 2 তে কনভার্ট হয়ে যাবে। যদি এটাকে আমি চাই যে না আমি এটা ভার্সন 1 এ রাখতে চাই, নো ভার্সন 2, তার মানে ও আবার ব্যাক করে ভার্সন 1 এ ব্যাক করে গেল। আগে একটা নো করে দিলে ওই কমেন্টটা নালিফাই হয়ে যায়। বোঝা গেল? আর কিচ্ছু না, মানে ভার্সন 1 আর ভার্সন 2 এর মধ্যে সব এক, শুধু রিপ বাই ডিফল্ট 1 এ আসে, তুমি এবার ভার্সন 2 ভার্ট 2 মেরে যেই ভার্ট 2 মারলে ও ভার্সন 2 তে চলে গেল। এবার তুমি যা কাজ করার, যেরকম কনফিগারেশন নেটওয়ার্ক দেওয়া তুমি দিয়ে দাও, ও অটোমেটিক্যালি কনফিগার করে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। सर वर्जन 2 करके शो करिए। क्या सर मिल रहा है वर्स बताओ, बताओ बोलो। सर तो आरआईपी 1 हाँ, आरआईपी कहाँ मिल रहा है, बोलो। ऊपर ही लिखा हुआ है सर हाँ राउटिंग ये तो ये रीप लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो क्यों लिखा हुआ है? इसीलिए कि हमने जो कॉन्फ़िगर किया वो रीप वर्जन 1 में, तो हमने जस्ट यहाँ पर रीप वर्जन 2 कर दिया, करके नो वर्जन कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुको। मिल रहा है क्या? देख लो। यस सर। ठीक है, एक मिनट।
Is it clear? Yes, sir. This is the process, nothing else. ठीक है? सर हमें फिजिकल राउटर में मिलेगा काम को? हाँ हाँ सर फिजिकल राउटर पे हाँ सर मतलब प्रैक्टिस करने मिलेगा क्या? हाँ, एक्सपेक्ट करता हूँ तो कि नवंबर में वो खुल सकता है पॉसिबली, तो उसमें तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जो बैच है सब बैच फिजिकल राउटर में किया था प्रैक्टिकल, सब बैच में, जैसे कि तुम्हारा VLAN का प्रैक्टिकल, इंटर VLAN राउटिंग, ये जो प्रैक्टिकल्स वगैरह है सब कुछ वो फिजिकल राउटर में ही किया था। तुम्हारा पहले जो बैच था वो बैच 18 बैच 17 बैच सब ने, इवन 16 बैच भी। लेकिन द मेन थिंग इज दैट ये कब खुलेगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो राउटर को कंसोल से कनेक्ट करते हैं वो क्या सॉफ्टवेयर होता है या कैसे कनेक्ट करते हैं उसे? नहीं, कंसोल केबल तो होता है, हम लोग के पास पहले जो केबल होता था ना, तो वो कंसोल केबल उसको कहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली टेक्निकल जो नाम है उसको कहते हैं रोल ओवर केबल। बेसिकली 3 टाइप का केबलिंग होता है, एक स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, रोल ओवर केबल। स्ट्रेट केबल क्या होता है? स्ट्रेट केबल होता है ये सीधा, जो तुम लोग ने RG45 क्रिम्पिंग करके बनाया था, जो 568B रूल फॉलो करके बनाते हैं, तो सही तरह से स्ट्रेट केबल होता है। मतलब यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो वायर है स्ट्रेट 8 वायर्स, वहां पर जाके दो साइड दो RJ45 जैक, ये तो ठीक है। उसके बाद आया क्रॉस केबल। क्रॉस मतलब कोई ना कोई तार क्रॉस हो गया था ऐसे, तो क्रॉस होने के मतलब यहाँ पर एक रूल था 1326, 13 इंटू 2 कितना है 26, 1326। इसका 1 जो तार है, समझ लो यहाँ पर 8 तार है, यहाँ पर जो 1 नंबर तार है वो इधर जाके 3 हो जाएगा, और इसका जो 3 नंबर ये साइड में है, ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, इस 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसका 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे क्रॉस हो गया, तो है क्रॉस केबल। और रोल ओवर केबल किसको कहते हैं ना, जो 8 केबल्स यहाँ पर है ये रोल ओवर, मतलब पूरा उल्टा होके पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब 1 2 3 4 5 6 8, यहाँ पर होगा 8 7 6 5 4 3 2 1, रोल ओवर केबल। एक्चुअली रोल ओवर केबल ही ये कंसोल केबल जब पहले होता था ना, तो ये रोल ओवर केबल ही इस्तेमाल होता था एज कंसोल केबल। क्या होता है, कंसोल केबल होता था, एक पास होता था RJ45 और दूसरा पास सीरियल पोर्ट, वो 9 पिन कनेक्टर ब्लू कलर का होता था, नॉट डीप ब्लू, स्काई ब्लू कलर का होता था, वो है वहां पर लैब में है, हम दिखा देंगे। तो एक साइड जब तुमको कंसोल बनाना पड़ता था ना, तो वो कंसोल एक्चुअली ये केबल को कंसोल केबल क्यों बोला जाता है, कंसोल के मतलब क्या है, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज कंसोल? जब भी कोई ऐसे टाइप का नाम मिलेगा ना, तो नाम को पोस्टमार्टम करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। कंसोल केबल, कंसोल किसको कहा जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को। मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में कि एक राउटर और एक कंप्यूटर के बीच कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय 3 चीज को छोड़ के, एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और होता है तुम्हारा जो सॉरी आई मीन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, 2 चीज का। क्योंकि राउटर के पास जो कुछ है एक कंप्यूटर के पास भी मोरलेस सेम है। कंप्यूटर के पास एडिशनली होता है डिस्प्ले, जो राउटर के पास नहीं होता है, कंप्यूटर के पास होता है कीबोर्ड माउस, जो राउटर के पास नहीं होता है। तो राउटर को अगर तुमको इस्तेमाल करना है तो उसके पास भी ये कंसोल होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये वो क्या करता है, वो एक पीसी को कंसोल डिवाइस
के हिसाब से जुड़ लेता है उसके साथ। किसके थ्रू से जुड़ता है? ये कंसोल केबल, दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड कंसोल केबल। ये जो RJ45 कनेक्टर, ये जो राउटर का कंसोल पोर्ट है उसमें जाके कनेक्ट होगा, और ये जो RJ45 कनेक्टर है ये जाके सॉरी तुम्हारा जो 9 पिन सीरियल कनेक्टर वो सिस्टम में जाके सीरियल पोर्ट में कनेक्ट होता है। लेकिन अब जो पीसी तुमको मिलेगा ना, नियर अबाउट 100% पीसी में ही कोई सीरियल पोर्ट नहीं रहता है, तो इसीलिए अलग तरफ से एक केबल यूज इस्तेमाल होता है, वो यूएसबी केबल। उसका स्पेशल कैटेगरी है जो तुमको मिलेगा हम लोगों के ये लैब में। वहां पर कोई सीरियल इंटरफेस नहीं होता है, तो डायरेक्टली एक पीसी के यूएसबी से उसका जो पर्टिकुलर यूएसबी पोर्ट है उसके साथ हम जोड़ देते हैं, तो वो कंसोल होके कनेक्ट हो जाता है। तो एक पीसी को हम एक कंसोल डिवाइस मतलब आईओ डिवाइस के हिसाब से राउटर का हम काम कर सकते हैं। समझ में आया? हमने कंसोल ये पॉसिबली हमने कंसोल केबल यहाँ पर दिखाया था, एक मिनट रुको, तो ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो पॉसिबली हम दूर कर सकते हैं। एक मिनट, कंसोल केबल हम जब राउटर पर आए थे उस टाइम में हम दिखाया था, पॉसिबली ये देखो, ये एक राउटर है, ये कंसोल पोर्ट, ये RJ45 कनेक्टर है, और ये ब्लू कलर का ये वायर चला गया है, यहाँ पर होता है सीरियल पोर्ट। ये RJ45 टू DB9 पोर्ट कहते हैं। ये यहाँ पर 5x9 पोर्ट होता है, 5x4 मतलब 9 पिंस होता है, ये सिस्टम में कनेक्ट होता है। और ये राउटर, इसका ये जो सॉरी ये जो पोर्ट है ना, ये जो पोर्ट, ये RJ45 यहाँ पर लिखा हुआ रहता है जी कि ये राउटर का कंसोल पोर्ट है, मतलब ये पोर्ट्स के थ्रू से तुम कंसोल डिवाइस ही कनेक्ट कर सकते हो, इसके सिवा और कुछ डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और ये होता है सीरियल। एक्चुअली ये पहले इस्तेमाल होता था, अब तो जाके चेंज हो गया। ये ऑक्सिलरी पोर्ट, शायद तुम्हारे पास मोडेम होगा, तो मोडेम का जो 9 पिन होगा, देखो ये RJ45 कंसोल पोर्ट था, ये ऑक्सिलरी पोर्ट हो गया उसके नीचे, इसका कनेक्शन भी वही कंसोल पोर्ट्स के थ्रू से हो सकता था। और देखो मैंने जो बताया कि ये कंसोल केबल इसको कहते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल एक्चुअली नेम है रोल ओवर केबल। इज इट क्लियर? अब यस ये है कंसोल पोर्ट, जो तुम्हारा सिस्टम में हाइपर टर्मिनल, वो जो एक्सेसरीज होगा, एक्सेसरीज के अंदर जाके उसके पास कम्युनिकेशन के अंदर जाओ तो हाइपर टर्मिनल सेशन ये मिलेगा, इसमें जाके ये इंटरफेस मिलेगा। ओके करके ओके करो, करने के बाद तुम उसका टर्मिनल जो होता है टर्मिनल के अंदर चला जा सकते हो। सर सर जो सिस्टम से iOS प्रोग्रामिंग करेंगे वो मतलब उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है क्या? हाँ, ये एक्सक्लूसिवली प्रोप्रिएटरशिप सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्को, नॉटेल जो होता है ना ये iOS बनाने के लिए, वो लोग ये वेल प्रोटेक्टेड के हिसाब से बनाते हैं। अगर तुमको सिस्को का iOS चाहिए तो सिस्को के साथ बात करके लेना होगा। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एक्चुअली iOS क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो विंडोज 10 विंडोज 7 हम लोग कहते हैं, तो वही राउटर में इस्तेमाल होता है या स्विच में इस्तेमाल होता है, उसका अलग तौर से होता है नाम, उसका नाम iOS होता है, वर्जन होता है। सिस्को से 7.2 7.111 लाइक दैट, ऐसे वर्जन होता है iOS। सर मतलब ये कोई भी ओएस पे काम करेगा? नहीं, कोई भी ओएस में नहीं। एक्चुअली ये लोग जो बनाते हैं ना, समझ लो कि सिस्को जो बनाया, सिस्को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मेरा जो ये iOS बनाया हमने, ये पर्टिकुलर मेरा जो मॉडल है, ये पर्टिकुलर मॉडल में ये iOS चलेगा, और इसी के हिसाब से ही वो बनाया।
उसी के हिसाब से ये बनाया। तो जैसे कि समझ लो विंडोज 7 हम लोगों का जो পরে কথা বলছি ক্লাस চলছে। विंडोज 7 जो होता है ना, विंडोज 7 में जैसे कि समझ लो कि तुम कुछ पुराना कोई मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के पास में जाके विंडोज लोड करो, नहीं होगा। क्योंकि वो स्पेसिफाइड है कि भाई ये मदरबोर्ड में ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसी के सेम थिंग इज हैपनिंग इन केस ऑफ सिस्को। सिस्को का बहुत आईओएस है, बहुत सारे आईओएस वो बनाया, लेकिन वो स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये जो वर्जन है, ये जो वर्जन का राउटर होगा उस राउटर में चलेगा, जो बाकी राउटर उसमें नहीं चलेगा। और उसका जो वर्जन का अपडेट होगा, वो अपडेट भी वो बोल दिया कि भाई ये अपडेट ये राउटर में होगा, जिस राउटर में वो आईओएस चलेगा। दैट इज द पॉइंट। जैसे तुम्हारा सिस्को का आईओएस है, नॉटेल का है, जूनिपर का है, हर एक बिग बिग जो तुम्हारा ये जो वेंडर है ना, ये वेंडर का खुद का एक डिजाइन, आईओएस डिजाइन करने का अलग डिपार्टमेंट है, अलग टोटली अलग टीम होता है जो ये सिर्फ ये बनाते हैं। दैट इज द पॉइंट। इज इट क्लियर?